All right, let's leave it at that and shift our focus. Well, the National Capital Region has turned into a gas chamber. The air quality in many parts of Delhi NCR is in the hazardous category. A persistent smoky haze has been blanketing the region for the third consecutive day, and in light of the rising pollution levels, all government and private primary schools in Delhi will remain closed for 2 days today onwards. Moreover, in the light of the worsening air quality, the third stage of the Graded Response Action Plan has been invoked in Delhi NCR. Now, amid the rising concerns, Delhi Environment Minister Gopal Rai held a meeting of all the concerned state departments today. He appealed to the people of Delhi to use public transport, including metro and buses, to control the pollution. NGT, meanwhile, has taken note of the situation and has sent a notice to Delhi Health Ministry and the AIIMS director. On the other hand, the Delhi Metro Rail Corporation has announced 20 additional metro trips starting today in a bid to encourage more and more people to use the public transport. The situation is not any better in Noida as well. Thick blanket of smog has gripped the area with low visibility and breathing issues. हमारा होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल सेक्टर 12 आरके पुरम में है एंड बिकॉज ऑफ सिवियर पोल्यूशन द स्कूल हैज बीन क्लोज डाउन, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और विच इज करेक्ट, जो राइट डिसीजन है, बिकॉज बच्चों की हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को नहीं सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ टाइम के लिए जब तक भी होगा वी ऑल्सो प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस. वेदर आप देख सकते हैं कितनी धुंध है, विजिबिलिटी भी बहुत कम है, तो ऐसे वेदर में बच्चों को इस वेदर का एक्सपोजर ठीक नहीं है. तो आई थिंक गवर्नमेंट हैज टेकन अ राइट डिसीजन टू कीप चिल्ड्रन इंडोर and obviously we will be taking online classes so that children don't miss their studies. प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद है, ऑनलाइन कर दिए, तो मैसेज डाले थे उसको हम लोग ध्यान नहीं दिए और देखने नहीं पाए, इस वजह से हम लोगों को पता नहीं चला. कंस्ट्रक्शन पे जो बैन लगा है उसमें कुछ गतिविधियों को जो है उनको छूट दी गई है, लेकिन आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन गतिविधियों को छूट दी गई है वहां पर इन सभी एजेंसियों को जो काम कर रही हैं उन एजेंसियों को डस्ट मेजर्स के जो 14 सूत्रीय नॉर्म हैं उन्हें फॉलो करना होगा. अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उन पे पेनाल्टी लगाई जाएगी. Now, amid all the crises in Delhi NCR over pollution, politics is also making its way despite the worry. Delhi Environment Minister Gopal Rai had earlier said that pollution is not a matter for Delhi alone and Delhi government cannot solve the issue completely. He went on to say further that the sources outside Delhi cause twice the pollution than the sources within Delhi. On the other hand, the BJP's Manoj Tiwari alleged that no work has been done by Kejriwal government to curb pollution. Tiwari further blamed the Aam Aadmi Party government of being neck deep in corruption rather being able to work for the people of Delhi. Adding to the blame game further, Congress MP Pramod Tiwari said that both the Delhi government and the centre are responsible for the pollution in the national capital. बात तो ये है कि ये सोचना ही बहुत गलत है कि दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है पूरी तरह से, क्योंकि पोल्यूशन का मैटर केवल दिल्ली का है ही नहीं. दिल्ली के अंदर के, अगर कुछ दिन पहले CSC ने एक रिसर्च किया था विंटर सेशन में, दिल्ली के अंदर के सोर्सेज हैं उससे दुगना दिल्ली के बाहर के सोर्सेज से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन होता है. तो दिल्ली सरकार अपने स्तर पे, युद्ध स्तर पे काम कर रही है और उसका परिणाम है कि अरविंद केजरीवाल जी के प्रयास का ही परिणाम है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की. 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन थे जिनमें एयर क्वालिटी अच्छी थी. पिछले साल धीरे धीरे काम करते करते पिछले साल हम 163 दिन पे पहुंचे थे. इस साल 365 में से 200 से ज्यादा दिन जो है दिल्ली को एयर क्वालिटी अच्छी मिल सकी है. पॉल्यूशन का स्तर हर साल की वही कहानी है सर. सर्दियां आती हैं, पॉल्यूशन बढ़ता रहता है, स्मॉग बहुत ज्यादा है, लोगों को समस्याएं हो रही हैं. देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का कोई भी एक गंभीर प्रयास नहीं हुआ. और इसके कारण ये हुआ है कि दिल्ली के लोगों की इस पॉल्यूशन के कारण
औसत 12 साल आयु कम हो रही है। लोग अपनी जिंदगी के 12 साल कम जी रहे हैं। एक कह सकते हैं आप कि धीमे जहर के रूप में ये पोल्यूशन असर कर रहा है। अभी भी जब आपसे बात कर रहे हैं तो हमको आपको दोनों को इसमें सांस लेना मुश्किल है। बिल्कुल सर। ये स्थिति लुटियन जोन्स की है, जहां पे हम अपने बच्चों को बाहर लेके आ रहे हैं तो हमको खतरा महसूस होने लगा है। अब इसको हम लोग क्या कहें, कहते कहते भी थक गए। अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार और तरह तरह की पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है और दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है। सर, दिल्ली की अगर खासतौर पे बात की जाए तो एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर जो है वो बहुत बढ़ गया है। लोगों में इस बात की चिंता है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हर साल इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है। कौन जिम्मेदार है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिक्स होती हुई नजर आती है? जिम्मेदारी अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो जिम्मेदार सीधे सीधे दिल्ली की प्रदेश सरकार और भारत की केंद्र सरकार दोनों है। हवाले कर दिया गया दिल्ली वासियों को, करोड़ों लोगों को सौंप दिया गया इस जहरीली हवा को सांस लेने के लिए, जहां बोलना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, रहना मुश्किल है। पहले तो ये होता था कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, वहां पराली जलती है। अब तो वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। भाजपा की सरकार हरियाणा में भी है और दिल्ली केंद्र सरकार भी है। तो दोनों दोषी हैं, दोनों अपराधी हैं दिल्ली की जनता को घुटने के लिए, मजबूर करने के लिए। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ने सोच रखा है दिल्ली से कोई मतलब नहीं उनको, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है। वरना अगर पराली का धुआं पंजाब से आ रहा है तो क्यों नहीं रोका आम आदमी पार्टी ने? और केंद्र सरकार बैठी यहाँ चुपचाप सोती रही, उसने क्यों नहीं समय से बैठक बुलाई? अब बैठक बुलाएंगे, अब क्या होगा? Well, that's all we have for this bulletin. More news and updates will continue on the other side. Stay tuned to Mirror Now.